Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Now, yes, today the new chapter is being started for the sake of you. The process and basis of accounting. New chapter 8, process and basis of accounting. This one is the new chapter, lesson 4, process and basis of accounting. We are going to study yes today. Now dear children, you need the book is language. सर आप किताब पढ़ते नहीं हैं, लेक्चर देते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा किताब का भी लैंग्वेज समझा दिया करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बुक मेरे सामने है। जो अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इज फॉलोड बाय recording, classification and summarization of all the business transaction. Means कहने का मतलब ये है बेटा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो फर्स्ट प्रोसेस जो करती है अकाउंटिंग में वो होता है आइडेंटिफिकेशन of transaction. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा जो प्रोसेस है उसके बाद जो प्रोसेस होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रीपैरेशन ऑफ वाउचर, प्रीपैरेशन ऑफ वाउचर, then after recording of the transaction in books of original entry. Recording in books of original entry. Recording in books of original entry. Then after posting them into ledger, posting them into ledger. Then after preparation of trial balance, preparation of trial balance and financial statements. This one is the process of accounting. My dear children, just I am going to explain you the identification of transaction
means the accounting process begins with identification, recording, summarization, classification of the transaction. So dear children, what is the process of accounting? Just identification of transactions. Means in the accounting process, when the transaction takes place, just the accountant has to identify the transactions, whether such transactions are in financial nature. Only such transactions are recorded in the books of account which can be measured in the terms of money. Remember, मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि वही ट्रांजैक्शंस अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिन्हें उस ट्रांजैक्शंस को पहचानना है कि ये फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, मतलब इसे रुपए और पैसे में आंका जा सकता है कि नहीं, मनी में मेजर किया जा सकता है कि नहीं। तो ये होता है ट्रांजैक्शंस, ये पहला प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का कि जस्ट द ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड the accountant whether such transactions is in financial nature, means it can be measured in the terms of money. The next process then begins preparation of voucher. When the accountant recognizes or considers the transactions that is in financial nature, then the voucher is prepared. The entry of such transactions firstly recorded in the voucher. Voucher is the documentary evidence of the transactions. That is called the source of documents. For example, आप देखते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कैश रिसीट, जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो बदले में रिसीट मिलती है, इनवॉइस मिलता है। इससे इनकी सहायता से जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के, उनकी सहायता से हम वाउचर में एंट्री करते हैं। दिस वन इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द transactions of the business firstly recorded with the help of source document. Source of documents are called just the documentary evidence of the transaction. Remember. Then after, the next steps involve the transactions are recorded in books of original entry as journal or subsidiaries book. ओरिजिनल एंट्रीज बुक और भी सहायक बहियाँ होती हैं, तब इन ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से इन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, जस्ट द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस इन द business organization are recorded in the books of original entry. After that, the next steps involve posting them into ledger. This one is the steps of summarization, means the related classified transactions at one place. These transactions are posted in the books of ledger, where at own a single account is opened for the particular head. मतलब इसके बाद ये होता है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद उस ट्रांजैक्शंस को एक स्थान पर बेटा उन्हें पोस्टिंग किया जाता है, उनकी समरी बनाई जाती है, एंड द
बैलेंसेस आर फाउंड आउट। जो बैलेंसेज होते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, आगे हम आपको बताएं। विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन, व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर posted into the ledger, then after at the end of the year the trial balance is prepared. Trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of the transactions, and with the help of trial balance, whether the trial balance is tallied, just the financial statement is prepared. In financial statement, income statement and balance sheet is prepared. Income statements are prepared to know the exact financial performance of the business, and balance sheet is prepared to know the exact financial पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिमेंबर, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोला जाता है तलपट बना इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हमने साल भर का या 4 महीने का या जब भी बनाए, उस ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया है, वो हमारा एरिथमेटिकल रूप से सही है कि नहीं। यदि एरिथमेटिकल रूप से सही रहेगा तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होगा। उसके बाद तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये हुआ बेटा कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to ascertain the gross profit or gross loss of the organization. Net profit and loss account is prepared to ascertain the net profit or net loss of the particular organization. Balance sheet is prepared to know the exact financial position of the business, increasement in capital or decreasement in assets and liabilities. So dear children, ये आपका है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो होता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे आप, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन कैश बेसिस, सेकेंड एक्रूअल बेसिस, एंड थर्ड हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड basis. In cash basis accounting, all the expenses, all the incomes, they are recorded on cash basis when they are paid or received. मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग में होता है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खर्च है या इनकम है, जब तक उसे कैश के रूप में प्राप्त नहीं कर लेते हैं या कैश के रूप में हम पे नहीं कर देते हैं, उसका भुगतान नहीं कर देते हैं, तब तक उसे इस बेसिस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, एक्रूअल बेसिस में ये होता है बेटा
कि whether the income or expenses due for the particular assessment year, चाहे वो उस साल का खर्च हो, चाहे उसका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, या इनकम जो है एक्रूड हो या अनएक्रूड हो, सबको रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूवल बेसिस पे। मतलब उस साल से संबंधित जितना भी खर्च होता है उसे हम एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं। Whether the expenses incurred during the assessment year that is due or recorded in accrual basis. Whether the income received in advance also recorded in accrual basis. According to the Company Act 2013, all the companies are for the companies this basis is mandatory. सबको इसी बेसिस पर अकाउंटिंग रखना पड़ता है। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा? हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग में दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, revenues and assets are recorded in cash basis. Just the revenues and assets are recorded in cash basis. जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है और जो भी हम एसेट्स एक्वायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको कैश बेसिस आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि एक्सपेंसेज एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन एक्रूवल बेसिस। जो एक्सपेंसेज या लायबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हम एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Now dear children, you must have learned through this video the process and basis of accounting. Again I would like to revise in Hindi, क्योंकि बाइलिंगुअल हमने किया है। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का आप जानते ही हैं उसका डेफिनेशन। This one is the process of identification, recording, summarizing, communicating, analyzing, classifying of all the business transaction। तो आप जब इसका प्रोसेस अकाउंटिंग का शुरू होता है, ज्यों ही लेन देन स्टार्ट होता है व्यवसाय में, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जब ट्रांजेक्शन स्थान ले लेता है, जब ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो वाउचर का प्रिपेयर किया जाता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री, एक तरह का प्रपत्र है जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम ट्रांजेक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कि वो डेबिट वाउचर है कि क्रेडिट वाउचर। इसका चैप्टर आएगा आगे, हम आपको बताएंगे विस्तार से वाउचर क्या होता है। इसकी सहायता, वाउचर किसकी सहायता से बनाया जाता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो ट्रांजेक्शन होने का प्रमाण होता है, जो कागज प्राप्त करते हैं जैसे रसीद, इनवॉइस और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसे हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तब उस ट्रांजेक्शन्स को हम अपने जर्नल या जो और ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद समराइजिंग वाला प्रोसेस आता है अकाउंटिंग का। हम क्या करते हैं,
उस ट्रांजैक्शन को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। एक स्थान पर एक प्लेस पर समरी बनाते हैं ट्रांजैक्शंस का और उससे बैलेंसेज पता करते हैं। उन बैलेंसेज के माध्यम से, उन शेष के माध्यम से हम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। तलपट बनाने के बाद फिर उसकी सहायता से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तलपट इसलिए बनाया जाता है कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसमें कहीं एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, कहीं भूल बस जोड़ घटाने में या 500 की जगह 5000 लिखने में कहीं भूल तो नहीं हो गई, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बेसेज है इसका 3 तरह का बेसेज होता है बेटा, कैश बेसिस पर, एक्रूवल बेसिस पर और हाइब्रिड बेसिस पर। इस समय जो अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा है वो एक्रूवल बेसिस, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। कैश बेसिस में जब तक किसी भी प्रकार का लेन देन, जब तक वो कैश में कन्वर्ट न हो जाए, कैश रिसीव न कर लिया जाए और कैश का भुगतान न कर दिया जाए, तब तक उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं। एक्रूवल बेसिस में उस साल का खर्च, चाहे उसका कैश में भुगतान हुआ हो चाहे न हुआ हो, उस साल का इनकम ट्रांजैक्शन, चाहे उसे हमने प्राप्त किया हो या न प्राप्त किया हो, वो सारे उधार और नगद दोनों का इस एक्रूवल बेसिस में हम अपने बुक्स में, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। हाइब्रिड बेसिस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। हाइब्रिड बेसिस में जो रेवेन्यू और एसेट्स होते हैं वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज वो एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये होता है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे in next video new chapter will be explained for the sake of you.